Actually, as per my experience, जो चीज मैं share करना चाहता हूँ, first is the 3 Ds. There is the 3 Ds: dedication, devotion and discipline. जो इन 3 चीज को grab कर सकते हैं, तो they can easily they can be make their self a good chef. और उसके साथ साथ main thing is attitude. So I'm Drishti Singla and I'm from Cook and Chef. So we have taken an initiative कि हम successful chefs की story अपने audience तक पहुंचाए. So today we have with us Buddhadev Chatterjee. Welcome, sir, and thank you Thank so you very much much. for joining. Yeah, thank you very much for lovely platforms, so we can change or share our knowledges. Okay, हाँ so जी. Terry. Okay, sir, आप अपनी कोई introduction दीजिए हमारे audience को. Actually, myself is Mr. B. Chatterjee, Buddhadev Chatterjee. I am basically belongs from Kolkata, and I started my career in '93 after passing IGM from Kolkata, so that I joined industry. Last, it has been long time. I was in industry for 25 years. So I Okay. worked with a lot of brands like Taj, Oberoi's, Clarks. Oh, And that's great. yeah, so that and the Marriott's. So I worked as the executive chef in 2010, reopening properties, and after then I joined in Lucknow as a corporate chef. I was heading 3 to 4 hotels, including Ramada, India, both Lucknow's like that. Then I went to US as a celebrity chef. So I got a chance, Great. yeah. So I got a chance to prove myself, So I was in Boston's uh, with a O1 visa. O1 visa basically it's a celebrity chef visa. So from the 2% from India, we went there. So actually, I had a research products, for the diabetics patient, how Indian cooking is good and healthy for the diabetics patients. So I did a research product also. And then I was heading there as a corporate executive chef, and I was heading 6 multi-cuisine fine dining Indian restaurant. And then I came back on 2017 due to some family issues, and then joined again as a director operation F&B in some good hotel, one good hotels. So I was heading a positions of chefs also, director operation F&B as by sides as an acting general manager. And last time I was with Bhopal also in 2019 as a GM operations of a big hotels. And then last year, 2022, I was with one group as a corporate chef. So I was running 6 to 7 fine dining outlets, along with 4 to 5 bakery outlets, one marriage gardens, one hotels. Just I have joined 10 days back in. I am in right now in Varanasi. I have joined in DoubleTree by Hilton. One pre-opening hotel are coming with the 235 rooms, 5-star deluxe property, as a director operation kitchen or culinary director. This is the journey. Okay, so that was a very big introduction और मुझे लगता है कि मतलब आपकी इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे इसमें फील्ड में, तो मुझे लगता है आपका इंटरव्यू से हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके. डेफिनेटली हम तो कोशिश करेंगे. आप जैसे जैसे ऑडियंस कुछ क्वेश्चन हो तो जो हाँ, of course. तो मतलब इस फील्ड में जाने का आपका शुरू से पैशन था, आप शुरू से इसी फील्ड में जाना चाहते थे या फिर? No. It's having a history. Actually, मैं after my graduations, so मेरा stream था BCom honors, so I got first class. So I got admission in chartered accountant because my father wanted that I'll be a good chartered accountant. So I got admission, then started. But मेरा एक passion था खाना बनाने का. Because one thing is कि chef actually God gifted होते हैं. Everybody can cook. Everybody can cook chicken, mutton, biryani, but everybody cannot be a good chef. Chef is a different parts. It's a God gift.
Of course. Chef is a person in spiritualism, the person who can run the 5 organs at a time. He can be a good chef. पंच रिपु, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, जो एक साथ at a stage उसको run कर सकते हैं, he can be a good chef. So it's not a matter of joke also, but passion होना चाहिए. If you cook from your heart with love, उसमें मसाला का जरूरी नहीं पड़ता. That's Automatically, who is the world best chef? Our mom. वो जो भी कुछ बनाए, क्योंकि उसका खाने में टेस्ट अलग होता है. Why? Till today, I love to eat with my hands of my mom. You know, क्यों? क्योंकि उनका खाने में जो प्यार होते हैं, जो दिल से, अलग ही बात. सही बात तो है. somehow मैं after that कि पढ़ाई तो बहुत कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट में, बट नसीब में ही लिखा था शेफ होना, तो एक पेपर में बैक हो गया, फिर हम छोड़ दिया. आई लेफ्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, गॉट एडमिशन इन होटल मैनेजमेंट. बस उसके बाद से और पीछे मुड़ के देखना नहीं, वही चल रहा है जर्नी. And then after that I did my MBA clinical nutrition and dietetics, so the higher studies के लिए. Okay. Actually I was in education also as a HOD of hotel management college also for 3 years. Okay. So sir, you are a corporate chef, right? Yeah. So would you just explain about your job कि आपका क्या job है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो? Yeah, definitely, why not. जब आप कॉर्पोरेट शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाओगे, तब आपका जॉब रहेगा 70% मेंट. Why? Because एक it has started from the markets. It starts from the market. How? आप एक सब्जी खरीद रहे हैं कुछ खाना बनाने के लिए, तो शुरू होता है उस जगह से जहां से हम खरीद रहे हैं. तो आपको you should have a very good knowledge of purchasing, quality controls, ये भी यहाँ से लेके recruitment, final product delivered to the customers quality and satisfaction से लेके बहुत सारा जॉब है. क्योंकि मेरा अंडर में कम से कम 6 से 7 यूनिट में 200 लोग काम करते हैं. Apart from that, I have to play a very good HR manager roles also, because I have to know कि मेरे एम्प्लॉइज कैसे हैं, वो ठीक टाइम में खाना खा रहे हैं कि नहीं. I have to act like a mother and father or head guardian of the company, because today's this is the only one industry in hotel industry who it is man oriented. It's called man oriented industry. यहाँ पे आदमी को 3 चीज का ज्यादा जरूरी होता है, प्लस टाइम में सैलरी, गुड फूड एंड a good sleep for a good accommodation. So ये भी चीजें हमको देखना पड़ता है. Apart from that, every day handling the customers complaint, फूड का क्वालिटी, उनका प्रेजेंटेशन, उनका गार्निक सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, से लेके प्रॉफिट एंड लॉस तक. Because you should have a very good knowledge with the finance also. क्योंकि after the month end, when I have to submit the reports to the corporates, तो उनमें बहुत सारा चीजें होते हैं जो फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट थिंग, कि हमने जो इतना कुछ कर रहे हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट क्या आ रहा है. उसके बाद डेवलपमेंट, नया नया एक्सपेंशन, उसका लेआउट, ड्राइंग से लेके बहुत कुछ जानना पड़ता है. नाउ आई एम वर्किंग इन इवन कौन सा जगह में स्विच कितना एम्पियर लगना है, कौन सा फ्रिज में वाटर का सामने रहेंगे तो कौन सा सॉकेट लगना है, ये भी मुझे जानना जरूरी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, वाटर टेस्टिंग से लेके लॉट्स ऑफ थिंग, केमिकल्स रिगार्डिंग केमिकल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है. सो दिस इज लॉट ऑफ स्टडी, इज द ओशियंस. अपार्ट फ्रॉम द सबसे बड़ा चीज है फूड बोर्न डिजीज, हैसअप, हाँ, द न्यूट्रिशन वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू. आजकल का दिन में people are very conscious about their health, and it has mandates for every hotels and restaurant to value of the each items besides your menu cards. So I have to study also on that matter also. If you go to the micro level, तो अगर आप बहुत भास्ट में जाएंगे तो lots of thing, even sales and marketing also देखना पड़ता है, क्योंकि हर महीने में बजट होते हैं, cost budget, revenue budget, the target has to be achieved anyhow at any cost.
So these all are, related with my work and is a part of my work. I mean, apart from that, somehow someday कुकिंग तो करना ही पड़ता है एक बार रेंज में, क्योंकि जब तक वहां नहीं जाएंगे तो मन भरता नहीं है दिन का अंदर। एक बार फ्राइंग पैन पकड़ लेते हैं तो एक्चुअली शेफ कोट पहनने के बाद वो फील आ जाता है। दैट फील्स नीड्स टू फील वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। यस, शेफ मीन्स आई एम ए शेफ। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाओगे, lots of people are roaming. You will see that lots of people will roaming around the hotels with the wearing of coat, pant, ties like that. हाँ, But जब एक शेफ आते हैं तो लोग घूम घूम कर देखते हो, नहीं एक true, शेफ है। true, So true. yeah, that's presentation. Even when I wanted to become myself a GM for the very small span, because it was a challenge for me. कि ये challenge यही था मेरे पास कि somebody told me sometimes कि नहीं शेफ जीएम नहीं बन सकता। So that, but हम लोग जानते हैं कि शेफ कैन बी a very good GM, but a GM cannot be a good chef. शेफ होटल चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। So I am also proud of myself कि I am a good chef. So that it's a passion. So We lot are of also proud of you, sir. no, that's okay. सर मतलब स्टार्टिंग में आपको अपनी जॉब डिफिकल्ट लगी होगी, तो आपने कभी सोचा कि मैं अपनी फील्ड चेंज कर दूं या इसी में रहना, अपने डेडिकेशन ही काम किया? Listen, I believe on 3 things. Actually, as per my experience, जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, फर्स्ट इज द 3 Ds. There is the 3 Ds: dedication, devotion and discipline. जो इन 3 चीज को ग्रैब कर सकते हैं तो they can easily, they can be make their self a good chef. और उसके साथ साथ मेन थिंग इज एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड इज व्हाट एटीट्यूड आजकल बहुत सारा मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स जो IHM पास करके आते हैं, and their thought process is completely different. They want कि हमको 4 साल में हम एग्जी शेफ बन जाएंगे, उसके बाद कॉर्पोरेट शेफ बन जाएंगे, 2 लाख रुपया सैलरी मिलेंगे। फिर यार उस समय हम लोग को स्टाइपेंड मिलता था 2200 रुपया, 2200। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 94, 96 एज अच्छा। ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सो आज मुझे सैलरी मिलता है 2 लाख के आसपास। सो दैट की, बट it has taken 25 years to reach their position, to this position. So आपका अगर आप स्टीयर में चढ़ते हो स्काई को छूने के लिए, तो it will be easier for you if you spend 10 to 15 years in this industry. So sky will be the limits for you. अगर आप सोचो कि एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी से हम चले जाएंगे जंप करके, that's not possible. Someday somewhere you will fall, okay, and you will come to the zero levels. Then again you have to start from the grassroots. So this is the basic things, or can do attitudes or learning attitude. हम जब बोलते हैं सबको ये फर्स्ट learn something then earn something. You understand? But learn something then earn something. आज अगर आप उस जगह में पहुंच जाओगे, if you spend 6 to 7 years with a good brands, तो आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। लोग आपको ढूंढ के लेके आएंगे कि आइए अपना होटल में आइए। So this is the thing. Nowadays hotel industry, yeah, and hotel industry का जो future है, this is the only one industry, tourism and hotel, most revenue earning industry in the world. अगर हम GDP में जाएं तो देखा जाए 26% इनकी कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। So that you think कि क्या हो सकता है, and this is the only one industry, it gives us a lot of employment. आसमान में देते हैं फ्लाइट, आप देखो टूरिज्म एंड होटल में क्रूज, वाटर, सारा सबको मिलता है चांस एम्प्लॉयमेंट, एंड लैंड, इवन हॉस्पिटल, दे हैव आल्सो हॉस्पिटल किचन में मिलते हैं। सो देयर आर a lot of scopes to grow yourself. So इस हिसाब में अगर देखा जाए तो this is a good industry. Growth is here, Of course. life is here, and also future is also here.
यस ऑफ कोर्स। और जब आपने 3 Ds बोले और पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, डिटर्मिनेशन एंड ऑल, मुझे लगता है ये सब ना हर फील्ड में जाना चाहिए, है ना, हर Everywhere, फील्ड में। because challenges will be everywhere. So you have हाँ, to face the challenge with your attitude. If your that's attitude is true. good and if you have a can-do attitude, हाँ हमसे होगा, हम करेंगे. That's it. So देखो, success will come towards you any times. Yeah. So this is the thing. And उसके साथ साथ जो respect, if you respect, if you give respect, so you will take respect. Hmm. This is the third law of Newton. So, every action Yeah, has a opposite reaction. yeah, yeah. And the basic things is that हम लोग तो एक word बोलते हैं, that is called gurus. Guru means अंधेरा, darkness, and ru means lights. So the person who will give you a path from darkness to lights, तो उनकी इज्जत होना चाहिए, respect होना चाहिए. So if you respect your seniors, so you will be automatically grow. Nobody can stop you. Nobody can stop. This is the basic thing. I'm basically I am basically from a very small village. My district town is Birbhum. It is in is a part of the West Bengal. It's the state it's the district of West Bengal, Birbhum. So I I studied in I started my first two school was in Bengali medium. Came to the industry, you know. So I got to learn a lot of things, you know. So even I went to US, even in 2012, Museum of Fine Arts in the world. That time the Barack Obama was the president. वहाँ पे जाके मैंने मिडिल ईस्ट स्टारशिप के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. आई एम द फर्स्ट शेफ who got the chance to represent That's India. very nice. Yeah, so I did it because वो तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल, है ना. दिस इज द बेसिक थिंग. सर और आपको अपनी फील्ड में कोई चैलेंजेस वगैरह आपने फेस करे स्टार्टिंग से, या फिर अभी कोई भी चैलेंजेस जो आपने फेस कर रहे हो? देयर आर द लॉट ऑफ चैलेंजेस. आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन मैं एक दो का एग्जांपल देता हूँ. जैसे कुछ समय में होते हैं कि दिस इज वेरी माने आई शुड नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट दिस कि बहुत सारे से ऐसे भी होटल है जहाँ पे मैनेजमेंट में ऐसे होते हैं कि लॉट्स ऑफ बॉसेस हो जाते हैं. सो यू हैव टू रिपोर्ट 3 to 4 bosses. So it is very difficult. It is very challenging. क्योंकि एक बॉस अगर आपको बोलते हैं यहाँ मत करिए तो दूसरा बॉस बोलेंगे आपको यहाँ ही करिए. So how you balance all this? That is a very learning, and it is comes from the experience. अब कोई बुक नहीं मिलेगा बाजार में जो आप पढ़ लेंगे और आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस. नो, it is this all come from the experience. The same thing happened with me also in 2011. जब मैं यूएस चले गए थे तो I was the only boss जो इंडियन और मेरा नीचे ऑल स्पेनिश. डाउन द लाइन में माय ऑल वर्कर्स दे वर स्पेनिश. ओके. We can't speak good English and also good English because in America they are the second language after English. Only Spanish people speak only Spanish. तो मुझे सीखना पड़ा गूगल देख देख के. फिर उनको the world most important language is body language. So I take one potato and uncle amigo, what is this? तो पापा. ओके. हाँ, तो धीरे धीरे जब ऑपरेशन में रन करने लगे तो was facing lot of difficulties कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, प्रॉपर कम्युनिकेशन. तो धीरे धीरे स्पेनिश भी बोलने लगे, सीखने लगे रात भर स्टडी करके क्या क्या होता है. तो धीरे धीरे होटल चलाने जैसे होते हैं. तो एक्चुअली मी बिलोंग्स फ्रॉम कोलकाता. तो सौरभ गांगुली को सब दादा बोलते हैं. तो एवरीबॉडी नोज हिम, तो जब सुबह ऑफिस आते थे तभी सब हमको बोलते थे बुएनो दियास, के पास amigo. तो मैं सीखा धीरे धीरे के पास मीन हाउ आर यू.
तो मेरे को बोलना पड़ता कि चलो आई एम मी बीइंग आई एम गुड, सो दिस लैंग्वेज इज स्वीट लैंग्वेज। हाँ, तो मैं भी धीरे धीरे सीखा वो क्या बोल रहा है, उसको वो क्या बोल रहा है, तो इट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी। धीरे धीरे बोलना, एक्सेंट भी या सीख गए स्पेनिश का, तो हम भी हाँ बोलने लगे कुआस्ता से सिलेंड्रो मत मींस व्हाट आर यू डूइंग। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंज, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। पर चैलेंज अगर आपका लाइफ में नहीं रहेंगे तो आप बड़े नहीं बन पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। चैलेंज हाँ आपको, चैलेंज को हर समय में पॉजिटिव वे में लेना है, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वेज। इफ यू टेक ऑल द चैलेंज इन अ वेरी पॉजिटिव वेज, so that it will help you to grow, to reach you in such a positions, in your dream positions। सही चैलेंज बात। छोटा भी हो सकता है, चैलेंज बड़ा भी हो सकता है, और चैलेंज एक ऐसा बहुत नॉर्मल भी चैलेंज हो सकता है, बट इट इज इफेक्टिव, एंड हाउ यू टेक इट दिस इज कंप्लीटली अप टू यू, है ना। सो सही बहुत बात। सारा जगह में ये सब चीजें होते हैं। उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं, लेग पुलिंग्स होते हैं हर एक कंपनी में। So if you put yourself in that this thing, so definitely it will push your leg, you know, तो आप नीचे गिर जाओगे। तो आपको इजीली हैंडल कर, इट इज ऑल्सो है चैलेंज। आजकल का दिन में भी बहुत जगह कंपनी हो गया है कि बॉस के पीछे पीछे घूमते हैं सब, है ना। तो जिसको हम लोग होटल इंडस्ट्री के टर्म्स में बोलते हैं बटरिंग करना, तेल मारना कोई। तो आई एम नॉट बिलीविंग इन इट, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आपका काम बात करते हैं, योर वर्क विल स्पीक एवरीथिंग, हाउ यू वर्क। इसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं है। आई एग्री विद यू। इफ यू कॉन्फिडेंट योरसेल्फ कि सर, सो इट विल स्पीक। जो काम करते हैं वो भी दिखता है, जो नहीं करते वो भी दिखता है। am I right or wrong? So this is the thing, so यू lot आर of कंप्लीटली challenges। राइट। तो चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, तो चैलेंजेस को पॉजिटिव वे में लेना है, और उनको धीरे धीरे वर्कआउट करके फिर इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द थिंग। सर आजकल बहुत सारे शेफ्स हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं ना, वहां पर जा रहे हैं, तो वहां का क्या बेनिफिट है, और आपने कभी सोचा कि आप भी वहां जाके शिफ्ट हो जाओ? नहीं। अब ऐसा मेरे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ शेफ्स, मेरा भी बहुत दोस्त है, इतना हमारा स्टूडेंट है वहाँ पे। एक होता है ना कि आदमी का एक एक वो होता है ना कि मोरिची का जिसको बोलते हैं, उस टाइप को उनको लगते हैं कि दुबई जाने के बाद सब करोड़पति बन जाएंगे। बट सिनेरियो इज नॉट लाइक दिस। जो जाते हैं कुछ दिन के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। आई गॉट लॉट ऑफ चांस बट आई डिडंट गो, क्योंकि मुझे कुछ कंट्री का भी पैशन था। अब किसी को जाना है तो जाते हैं दुबई में, कुछ दिन के बाद वापस भी। आप भी जा सकते हो विजिट वीजा में, 26 डेज वहां पे बहुत सारा सा कंसल्टेंसी है, वो ले जाएगा आपको विजिट वीजा में। फिर आपको इंडिया में बोलेंगे कि बड़े होटल में आपको सपना दिखाएंगे, फिर वहां जाके आपको रेस्टोरेंट नहीं तो छोटा कोई जगह में डाल, फिर वो क्या होगा, फिर वो डिमोटिवेटेड होते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते हैं, फिर क्या होता है वापस इंडिया आने के लिए फिर कोशिश करते हैं। दिस इज द थिंग। इफ यू वांट टू गो डेफिनेटली यू गो टू द यूके, यू गो यूएस, बट वेरी टफ टू गेट ए वीजा ऑफ यूएस कंट्री। हाँ वो तो हाँ। हाँ, दिस इज वेरी टफ। एक होते हैं जैसे J18 वीजा होते हैं, जो स्टूडेंट वीजा, उसमें से कोई अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वो जा सकते हैं, तो दे कैन गेट द चांस। बट H1B या H1 मिलना इज वेरी टफ, क्योंकि मेरा 1 साल से मेरे इंटरव्यू हुआ था, स्क्रीनिंग हुआ था, फिर फाइनल जब इंटरव्यू हुआ था 1:1, तो वो थ्रू यूएसए एम्बेसी में हुआ था, तो उसके बाद ही हम लोगों को मिले। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, यू नो, योर एटीट्यूड, हाउ you present yourself, sort of। दैट्स ट्रू। मतलब अगर जो फ्रेशर्स हैं वो जाना चाहें, मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे अपने एक्सपीरियंस से, कि उनको जाना चाहिए या फिर किस चीज की वेट करनी चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाना चाहिए। एक बार फॉरेन टूर तो करना जरूरी होता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है करियर। बट उनको देखना है वेयर आई एम गोइंग,
कहीं से भी जगह में चले गए किसी का कहने पे, दैट इज नॉट करेक्ट। मैं वो बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आप जा रहे हो, जाने के बाद आपके करियर में वो हेल्प करे फ्यूचर में, उस जगह में जाना चाहिए। तो सर वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको क्विक आंसर्स देने हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? या नो इश्यूज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक आर यू सक्सेसफुल? या ओके, तो सर अगर आप इस फील्ड में ना होते तो आप किस फील्ड में होते? मेरा ड्रीम था, आई वाज हैविंग ए ड्रीम, आर्मी ज्वाइन करना था, ओह, तो मैं ओके। आर्मी में ज्वाइन कर, क्योंकि मेरा फादर वाज एक्स जो मेजर जनरल थे, मेजर थे आर्मी का। इट वाज ओके, माय आपकी ड्रीम, लुक भी मुझे वैसी उसी में वैसी ही ही लग रही थी। आपकी कोई फेवरेट डिश या कुजीन कोई भी? या माय फेवरेट कुजिन इज अवधी कुजिन। ओके, और आपका आगे का क्या गोल है? तो अच्छा, कोई बड़े जगह में या ग्रुप जीएम, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट बनना। ओके, तो अभी तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट? सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरा वही था यूएस में, व्हेन आई आई फाइटेड विद द मिजेलिन स्टारशिप। मिजेलिन स्टारशिप वही होते हैं जैसे विकास खन्ना है इंडिया का, है ना, तो उनका सामने मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था एज ए फर्स्ट इंडियन शेफ। इंडियन शेफ तो बहुत अमेरिका गए, लेकिन ये अचीवमेंट किसी का नहीं था। हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, जो मुझे सेलिब्रिटी शेफ का वीजा में गए, और मैं रणबीर बार की जगह में गए थे, वो आ गए थे, बट नाउ दे आर द इम्प्लीमेंटेशन शेफ, जिसको बोलते हैं मीडिया शेफ। वो लोग मीडिया में आ गए हैं, तो दे हाईलाइटेड इन इंडिया ऑलरेडी, बट हम लोग कभी मीडिया में नहीं आते क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, so that we haven't highlighted in front of any medias. But you can say क्या everywhere a hidden gems, so वो होते नहीं है एक्चुअली, सामने नहीं आते, इस टाइप का ही है। बट मैं चाहता हूँ आई कैन शेयर माई नॉलेज। मैं फ्री में फ्रीलांसर में सारा रेस्टोरेंट होटल जो मेरे पास आते हैं उनको डिजाइनिंग दे देता हूँ, मेनू प्लानिंग, बट विदाउट एनी कॉस्ट, बिकॉज दिस इज माई पैशन। मैं ओके, ज्ञान बांटना चाहता हूँ, कोई भी आए मैं वो करे तो मैं करता हूँ, ये मेरा पैशन है, आई लव इट। बहुत अच्छी बात है। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, यू नो शेफ, कुकिंग, इन सब फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करोगे कि उनको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, उनको कैसे करना चाहिए, उनको मतलब किस चीज के लिए रेडी होना चाहिए? कुछ नहीं, टू थिंग्स, विथ अ स्माइल फेस, इसमें पैसा नहीं लगते हैं, हंसने में तो पैसा नहीं लगता है, नहीं लगते है ना, दैट्स इट। एक विथ माई स्पेस, सेकंड गुरु का सम्मान, दैट्स इट। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक अगर मसालची या केसरी जो प्लेट धोते हैं, उनको भी सम्मान करनी है, वो भी उनका वो जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब, क्योंकि ये मानना है कि जो कचरा उठाते हैं किचन से, वो अगर नहीं उठाते तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जितने सारे डाउन द लाइन के लोग हैं, हर एक को उनकी पोजीशन में सम्मान करनी है, और बस, और कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। और एंड ऑफ द डे जो मेन चीजें होते हैं कि इंस्टेड ऑफ हेडफोन, आई वुड सजेस्ट व्हेन यू स्टेप इनटू द किचन, take a knife and keep it in your pockets. It will help you, because knife is the only friends. It helps to make you a good chef. ट्रू, ट्रू। How to run the knife? There are a lot of ways to run the knife. हाँ, so ये पहला जरूरी होता है। बहुत सही बात है, सही बात है। सर मतलब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है जो आपका इंटरव्यू देखेगा ना, उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आएगी, उसको नॉलेज मिलेगी फॉर श्योर। मतलब इस फील्ड में आने का ना उसको मन करेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगी जो इस फील्ड में आना चाहता है। तो बहुत मैं ज्यादा तो पॉजिटिव मैं इंटरव्यू था, मुझे अच्छा as a, लगा। as being a teacher, as being a professionals, as being a chef, मैं यही सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट ऑल टाइम्स कि ये चीज अगर
रखे यहाँ पे, तो एनीबडी कैन डू इट, वेरी आसान है, बट एक दिन में नहीं। कीप योर पेशेंस एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न, बिकॉज इट्स ओशियन, इतना बड़ा है कि सोच नहीं सकते हैं कोई। तो इसके लिए क्या है कि उसके लिए उनको डेडिकेटेड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सब चीजें अगर, और एक गुरु को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आइडियल इमेज होना चाहिए आंख का सामने, तो हो जाएगा। क्योंकि मैं, अपना गुरु था मेरा इम्तियाज खान कुरैशी, जो आईटीसी का ग्रैंड मास्टर से बोला है। आज उसका 93 का आसपास में उम्र हो चुका है। तो मेरा जब मैं भी उनको इस जगह में फॉलो करता हूँ, ये है उनका इतना तक है। तो कोई ना कोई आदमी को तो फॉलो करता है और अपना दिल में रखता है। सुबह शाम मैं उठता था और गुरु को प्रणाम करता था और काम में जाता था। सो एक्चुअली क्या है, मेरे को एक गरम मसाला का रेसिपी सीखने में लगा 9 इयर्स। हम लोग सब जानते हैं कि लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, दालचीनी डाल दो, जावित्री डाल दो, ब्लैक पेपर डाल दो, उसको पीस दो, तो गरम मसाला हो गया। नो, एक्चुअली इट इज नॉट। आपका पेट में अगर कोई जगह में दर्द हो रहा है, तो डाइजिन देने से तो दर्द नहीं होगा, सब हर एक दर्द का अलग अलग दवाई होता है। सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशंस। तो हम अगर 2 इलाच की जगह 5 इलाच रख देंगे, 6 लौंग रख देंगे, कुछ सिनेमन में दालचीनी ज्यादा कर देंगे, मतलब उसकी कॉम्पोजिशन को जाननी है, तब जाके वो मसाला बनता है। इससे लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो ये होना जरूरी है। जैसे एक क्या होता है, ये 5 फिंगर्स, these all are the power generating points. If you take जीरा पाउडर, करेक्ट, 1 part of जीरा पाउडर, उसमें थोड़ी सी चाट मसाला एंड 3 parts ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हाथ में लेके उनको रब कर दीजिए, तो इसमें हीट जनरेट होता है। जब हीट जनरेट होते हैं, द साइंस इज सेइंग दैट, जब इसमें हीट जनरेट होगा तो क्या मसाला के अंदर बहुत सारा सा वोलाटाइल ऑयल्स रहता है, इनविजिबल ऑयल्स, जो आंख में दिखा नहीं जाता है। इसीलिए जब गरम मसाला को रोस्ट किया जाता है तो स्मेल विल कम आउट। सो इसमें से क्या होता है, शेफ अपना फ्लेवर चेंज कर देता है। सब आप सामने देखेंगे कि हम शेफ लास्ट में नमक डाल रहा है और शेफ के खाने में चेंज हो जा रहा है, बट पहले जमाने में रेसिपी बुक में नहीं लिखा रहता था। इट वाज ए जस्ट लाइक ए गुरुमुखी विद्या, श्रुति टाइप का वेद, द पार्ट ऑफ वेद। सो मेजरमेंट, थंब रूल, ऐसा हम ले रहे हैं एक मेजरमेंट, एक उंगली हटा दे रहे हैं, एक मेजरमेंट, एक उंगली हटा दे रहे हैं, एक चुटकी भर, तो हम तो नमक ऐसे उठाएंगे बट डालेंगे इतना सा। ओके, दिस इज द सीक्रेट थिंग्स ऑफ द शेफ्स, सीक्रेट टॉपिक्स। ओके। So these are lot of things needs to be learned. So यही मेरा मैसेज है सबके लिए, और एंड ऑल्सो इट वाज अ नाइस इवनिंग। तो मैं कुछ एक्चुअली कुछ थोड़ा सा शेयर कर पाया सबसे। आई होप कि पीपल विल एंजॉय। एट द एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लोग कुक्स एंड शेफ को शेयर करो और उनके साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।